हेलो क्लास, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड क्या होगा, कोई चार्ज बॉडी अगर ट्रैवल करता है तो उसका टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, खास करके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम टाइम ले, उतना ज़्यादा टाइम ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास होता है। आज हम आपको पाथ ऑफ द चार्ज बॉडी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। पाथ ऑफ द चार्ज बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक है पाथ ऑफ द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर देयर बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. A charged body is released in this electric field. Consider there be a uniform electric field E. A charge Q is released. Then its path will be straight. If theta is equal to 0 or theta is equal to 180 degree. While in other cases, while for other angle like theta is equal to 90 or theta lies between 0 to 90, we get different nature of path of the charge body. Let Q is projected with velocity u perpendicular to the direction of electric field. In such a way, it covers Q. Let Q is projected with velocity u making theta बराबर 90 degree with the direction E, so that in t second it covers x distance in horizontal and y distance in vertical. In horizontal motion, x distance in horizontal direction and y in vertical direction. In horizontal motion, S is equal to ut plus half at square. This is the formula. In horizontal direction, charge body travel x distance. The velocity of this charge body is u and t plus in this direction there is no acceleration, so we can get time to cover this x distance with velocity u. This is equal to x by u. In vertical motion, S is equal to ut plus half at square. S, it covers y distance. There is no initial velocity along the y direction initially. Half and A is equal to F बराबर E into Q, mass into acceleration, E into Q. A is equal to EQ by M. This is already I taught you in second lecture. एक्सेलरेशन किसी भी चार्ज बॉडी का जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका EQ by M होगा. We substitute this value Q by M into T. The value of T is also x square by E square. Then we can say Y is equal to EQ by 2mu square into x square. This is the equation of path of charge body in the electric field, and it will be parabolic. It will be parabolic.
कंपटीशन के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर वो 0 डिग्री या 180 से जाएगा तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, और किसी भी एंगल से करेगा तो वो पैराबोलिक फॉलो करेगा। और एनसीईआरटी में चूंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो बोर्ड में डिराइव करने दे सकता है, इसलिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में सिर्फ आपको याद रखना है कि क्या पाथ का नेचर होता है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेकंड टॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो रुक रुक करके वीडियो देख करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, और नहीं तो अगर नोट और चाहिए तो आप इस ईमेल एड्रेस पर आप हमको भेज सकते हैं फॉर द नोट्स। Electric field at a point due to point charge. Consider there be point charge Q kept at the origin. Q0 be the test charge having position R, coordinate X, Y, Z. Consider there be a point charge Q kept at the origin. A test charge Q0 kept in XY plane. Having position vector R, coordinate X, Y, Z. Therefore R is equal to XI, because पहला I के एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, उसका बेस वेक्टर I है, प्लस YJ, Y एक्सिस के लिए J बेस वेक्टर है, एंड ZK. Therefore R magnitude is equal to X square plus Y square plus Z square का रूट होगा. The force between, according to Coulomb's law, force between them is equal to K Q into Q0 by R square, where K is equal to 1 by 4 pi epsilon, value 9 into 10 to the power 9 Newton meter minus 1 Coulomb square, meter minus 2 Coulomb square. Newton meter square Coulomb minus 2. Newton meter square Coulomb minus 2. This is the unit of 9 into K का वैल्यू का. Now in vector form, F vector is equal to K Q into Q0. R vector देंगे तो एक vector RQ हो जाएगा. Q0 के इधर ले आते हैं, F vector by Q0 is equal to K Q R vector by RQ. F by Q0 बराबर E. तो E is equal to K Q R vector by RQ. This is the vector form of electric field due to point charge. The magnitude of this electric field will be E is equal to क्या होगा? K Q by R square, or 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. ये SI unit न्यूटन पर कूलम. कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू, आर की जगह दे सकते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड होता है X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का होल क्यू है, अब पावर स्क्वायर है, रूट है 3/2. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. This is the electric field at a point due to point charge. Electric field at a point due to infinite long conductor. The third topic, electric field at a point due to infinite long conductor. Consider there be infinite long conductor having charge density lambda. P be the point at a distance of R. P be the point at distance of R, where unit positive charge is taken. We consider a very small section A, dl, at point A, which makes theta angle with R at a distance of R
and at a distance of r from P and L from M. कंसीडर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देते हैं. कंसीडर देयर बी an infinite long conductor having charge density lambda. P be the point at a distance of capital R from this infinite long conductor. We consider dl at a distance of L from M and R from P in such a way angle APM is equal to theta. This information, all information about this figure is given here. Now the charge of dl, Coulomb's law is true for only point charge, so we have to find out the point charge at P. Point charge at A is equal to क्या हो जाएगा, लैम्डा dl. तो इस लैम्डा dl के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू K फॉर्मूला से चार्ज लैम्डा dl, और उस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस r, डायरेक्शन अलोंग Pn होगा, मेकिंग थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस along Pn. So E has two component, DE has this one. So DE has two component. First DE cos theta and DE sin theta along positive x-axis and negative x-axis. DE cos theta along positive x-axis and second DE sin theta along negative y-axis. From symmetry, that means ऐसा ही सेक्शन अगर हम नीचे लेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर कंपोनेंट इधर होगा, यानी y कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखेंगे फ्रॉम सिमेट्री summation of DEY is equal to 0, but summation of DEX is not equal to 0. Therefore, electric field will be equal to electric field E is equal to integration along x-axis DE cos theta. DE, the value of DE is equal to K lambda DL by R square cos theta integration. Here K is constant, lambda is constant, DL cos theta by R square. These DL cos theta and R square are variable, so we have to convert it in one function. By this triangle, I have only one triangle, AMP. So in triangle AMP, tan theta is equal to P by B, L by R. L is equal to R tan theta. We want the value of DL, so we have differentiating it. तो L का डिफरेंशिएशन DL, R tan theta का डिफरेंशिएशन sec square theta, theta का डिफरेंशिएशन d theta. The value of DL is R sec square theta d theta. Now we would like to find the value of R. In the same triangle, cos theta is equal to base by hypotenuse, R by R. Therefore, R is equal to R by cos theta
और r sec theta. Squaring both sides, r square is equal to r square sec square theta. Now the value of r square and dl, the value of dl and r square is substituted in equation this one. And k lambda, the value of dl is r sec square theta d theta, r sec square theta d theta into cos theta divided by r square. The value of r square is r square sec square theta, r square sec square theta. This sec square theta, sec square, and r is get cut off. K lambda by r is the constant, cos theta d theta. So for infinity, the limit raises to minus pi plus pi by 2, either minus pi by 2. ये बढ़ते बढ़ते plus pi by 2 तो चला जाएगा इन्फाइनाइट तक, इधर बढ़ते बढ़ते माइनस पाई बाई 2 चल हो जाएगा. इसे पूरा लिमिट माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, टेकिंग लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, टेकिंग लिमिट माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 प्लस sin pi by 2 और k lambda by r into 2 e is equal to. इसमें थोड़ा सा कंपटीशन, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें थोड़ा सा कंपटीशन सेक्शन बताते हैं कि अगर ये सिमेट्रिकल ना हो, फाइनाइट हो, कुछ भी हो, मानते एसिमेट्रिकल है, एक तरफ का एंगल अल्फा बन रहा है और दूसरे तरफ का एंगल बीटा बन रहा है, तो इसका दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी एक्स होगा, के लैम्डा बाई आर, ये श्योर होगा. इधर भी होगा के लैम्डा बाई आर श्योर होगा, और 2 की जगह इधर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसमें आएगा पहले नीचे वाला आएगा कॉस बीटा माइनस, और माइनस आएगा बीच में कॉस अल्फा. इसके बाद किसी भी शेप के लिए 2, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो, चार डेंसिटी लैम्डा, डिस्टेंस आर है. Now the next topic is to determine the electric field at a point due to circular coil. Determine the electric field at a point due to circular coil. E due to circular coil. Consider there is circular coil of radius r. Q charge is uniformly distributed over it. P be the point at a distance of x from the center of the coil. We consider a very small section having charge dq. We consider a small section having charge dq. Small section having charge dq. Therefore, electric field E is equal to k dq by r square as 2 component, one dE cos theta along positive x-axis and dE sin theta along negative y-axis. We know that from symmetry dE y is equal to 0, symmetry से, but some dEx is not equal to 0. Hence E is equal to integration dE cos theta. But dE, the value of dE is equal to, this one angle is also theta. D is equal to k dq by r square into cos theta base by hypotenuse, x by r. So k x r cube, these are constant, integration dq. This whole integration have been equal to kqx by r cube.
आर का वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स का रूट होगा उसका होल क्यूब, दैट मीन्स 3/2. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू along the axis. This is the direction electric field at a point due to circular ring. If n be the number of turns, then E is equal to k n k q x by r square plus x square का 3/2. If n be the number of turns. Second, if x is equal to 0 at the center of the ring, at the center, E is equal to 0. X 0 इसलिए मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा. If x is very very greater than r, then E is equal to k q x by r नेग्लेक्ट होगा x स्क्वायर का 3/2 x क्यूब, that is k q by x square. Then its graph will be E is equal to E सेंटर पर 0 इन्फिनिटी पर 0, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा r/√2 पर. r/√2 पर. कैसे पता चलेगा मैक्सिमम कब होगा? किसी भी रिंग का सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन 2r है, तो कंपटीशन में एक लाइन में आंसर करने के लिए जितना भी सेपरेशन होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालना है तो जितना भी सेपरेशन होता है उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो r/√2 डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इंफिनिटी पर 0, सेंटर पर 0. दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट. नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू सेमी सर्कुलर, electric field at a point due to semicircular coil. Consider there is semicircular coil having radius r, O is the center. We consider very small section dl making d theta angle at the center. Lambda with the charge density, then dq बराबर हो जाएगा lambda dl. इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू हो जाएगा के फॉर्मूला से, चार्ज है लैम्डा dl बाई रेडियस r है तो r स्क्वायर. जो थीटा एंगल बना रहा है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, DE cos थीटा इस डायरेक्शन में along पॉजिटिव x एक्सिस एंड DE sin थीटा along नेगेटिव y एक्सिस, along पॉजिटिव along ON, positive x-axis and DE sin theta along negative y-axis. From symmetry इसमें भी चलेगा, खत्म हो जाएगा. From symmetry summation of DE y, हमेशा y वाला 0 होता है, and summation of DE x is not equal to 0. Therefore E is equal to integration DE cos theta. Well, the value of DE is equal to k lambda dl by r square and cos theta. Integration. The value of dl is determined. D theta is equal to dl by r. Therefore, dl is equal to r d theta. Instead of dl, you can write dr r d theta. So k lambda r d theta cos theta by r square. R cancel. जो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन. इसका लिमिट इधर एंगल बढ़ते बढ़ते करते π/2 तक, इस और एंगल बढ़ते बढ़ते -π/2 तक. इसका लिमिट लेंगे, E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा -π/2 टू +π/2. के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा -π/2 टू π/2, के लैम्डा बाई आर साइन π/2 और प्लस साइन π/2, के लैम्डा बाई आर इंटू 2. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल. अगर एंगल डिफरेंट हो तो, एसिमेट्रिकल हो तो, एक तरफ अल्फा बना रहा है दूसरे तरफ बीटा बना रहा है, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो एक 6 में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा.
ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इधर हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू होगा के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, इस तरह से इसका वैल्यू निकाला जाता है किसी भी सेट का। और लास्ट टॉपिक है डिस्क, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सेमी सर्कुलर डिस्क। एक डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, रेडियस आर, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, पी पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स या एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। एक छोटा सेक्शन लेते हैं इसमें जिसका थिकनेस dx है एट ए डिस्टेंस ऑफ x, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। तो ये रिंग की तरह बिहेव करेगा, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू होगा के फॉर्मूला से इसका चार्ज कितना होगा, यूनिट एरिया के लिए अगर सिग्मा है तो इसका एरिया होगा 2 पाई एक्स dx के लिए कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स dx, इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स dx डिवाइडेड बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक डीई एक होगा डीई थीटा, अगर बनाते हैं तो डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। तो डी साइन थीटा कैंसिल होगा, जो भी बचेगा डी कॉस थीटा होगा। तो ई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई एक्स dx बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर बेस में है हिपोटेन्यूज आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। तो जो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, सिग्मा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, नीचे बचा ऊपर बचा एक्स dx और नीचे हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 और 3/2 लिमिट बढ़ते बढ़ते इसका कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के आर तक जाएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा के 2 पाई आर, इस पर tan थीटा मानते हैं। फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, 2x dx 2z dz, 2 से 2 कैंसिल, x dx बराबर z dz। तो वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू के इंटू 2 पाई आर 0 से r तक, x dx के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x dx के जगह पर लिख सकते हैं z dz और इसका z स्क्वायर बाई जेड क्यू हो जाएगा, जेड से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा के 2 पाई आर इसका इंटीग्रेशन 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड टू पावर माइनस डी जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 जेड टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 यानी माइनस 1 बाई जेड। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं 1 बाई जेड 0 से लेके आर तक, माइनस सिग्मा के 2 पाई, के का वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड का वैल्यू कितना था, जेड इज इक्वल टू था आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, और एक बार 0 से लेके आर तक, माइनस सिग्मा 2 पाई आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आर वैल्यू पुट करेंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस 0 वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई आर, माइनस अंदर कर देते हैं, माइनस सिग्मा आर भी कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये बचेगा, माइनस अंदर किए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस
आर बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, माइनस अंदर ले गए थे इसलिए उलट गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डिस्क। तो स्टूडेंट कोई सीबीएसई में तो आएगा नहीं, तो कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये हम इसलिए डिराइव किए कि आपको पता लगाना है कि कैसे डिराइव किया जाता है। सिर्फ रिजल्ट याद रखने से कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के कारण इतना होता है, यही काफी है। अगर लड़का नहीं अगर पूरा बनाना चाहता तो कम से कम ये इतना याद रख ले। खास करके मेडिकल वाले लड़के जो मेडिकल में बैठा, नीट में बैठा जाते हैं, उसको सिर्फ रिजल्ट ही याद करना है। और जो एडवांस में बैठना चाहता है, जी में बैठना चाहता है, उसको डिराइव कैसे किया जाता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि एकदम डिस्क के लिए ही पूछेगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल भी कर देगा, हो सकता है इसका चार्ज वेरी कर दे। तो एक छोटा सेक्शन लेकर के कैसे डिराइव किया जाता है ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। हो गया, दैट द लास्ट, दैट द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन आई विल टीच यू dipole and electric field due to dipole, and when dipole is taken inside the uniform and non-uniform electric field and time period electric field lines, I will teach you in the next lecture. थैंक यू। इसको अगर पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा जरूर, पढ़िएगा एक एक लाइन कर करके। थैंक यू।